Okay, now students, we can start our session. Just moment for the moment. Just wait for a moment. Okay, let me share the screen. I'm just waiting for let's whiteboard gets open, then we'll proceed further. Yes, it has started now. Just a moment, student. Yes, is it visible? Whiteboard is visible to everyone? Yes. Do reply, students. Whiteboard visible to everyone? Okay, thank you so much. चलो, now let proceed करते हैं. See, first understand, students. Topic name is time, speed, and distance. Yes, is it visible to everyone? जो बोर्ड पे मैं लिख रहा आप सभी को दिख रहा है? Okay, thank you. So understand the first concept, students. What is distance stand for? Distance का फॉर्मूला क्या है? Speed into time. Clear everyone? मतलब to cover a distance, आप लोगों का क्या स्पीड था और आपने कितने समय में उसे कवर कर लिया, ये आपको पता होना चाहिए. और आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. ओके, सॉरी. Time is inversely proportional to what? Speed. What does it inversely? It means what? Suppose if you increase the speed, or I must write this. It means what? If you increase the speed, अगर आपने speed को increase कर लिया, what will happen? It will decrease your time. It will take less time. If you decrease the speed, what will happen? It will take more time. Clear everyone? Okay, now what is distance is equal to what? Speed into time. So with the help of this formula, we can get two more formulae. One, speed is equal to what? Distance upon time. Another one is what? Time is equal to distance upon speed. Clear this everyone? Speed is equal to distance upon time, and time is equal to what? Distance upon speed. So these are the three formulas. One, students, now tell me, okay, see, tell me 1 hour is equal to how many minutes? Anyone? 1 hour is equal to how many minutes? Yes, 60 minutes. Very good. So 1 minute is equal to how many seconds? 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. And 1 hour, which is equal to how many seconds? See, 1 hour का 60 मिनट होगा, 1 मिनट का 60 सेकंड होगा, लेकिन 1 hour के कितने सेकंड्स होंगे? तो 60 into 60 होगा, which is going to be what? 3600 seconds. Hope this clear everyone? Yes. If I write reverse, अब अगर हमें इसका रिवर्स करना है,
1 minute इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? कितना होगा स्टूडेंट्स? अब देखो 1 आवर का 1 आवर विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देन हु विल टेल मी 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? तो आपको रिवर्स पूछा है, सो राइट डाउन 1/60। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी आईएमपी। ये कन्वर्जन आपको आएगा ही आएगा वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 second इज इक्वल टू हाउ मिनट स्टूडेंट्स? 1/60 minutes. And 1 hour is equal to 3600 seconds. So what is 1 second which is equal to 1/3600 seconds? Okay, write down this clear everyone. Yes. Now tell me distance जो है स्टूडेंट, डिस्टेंस 3000 नहीं है, विच इज ये 3600 है भाग्यश्री, वो 3600 है, ये जो यहां से आया है। 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? तो 60 × 60, तो मैंने उसका रिवर्स लिखा है। अगर आपको 1 second इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर पूछते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने, इट शुड बी आवर्स होना चाहिए, आवर्स कर दो वो। ओके, डिस्टेंस का यूनिट क्या है स्टूडेंट? डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग किसमें काउंट करते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी? वी मेजर डिस्टेंस इन व्हाट? आइदर हम लोग किससे मेजर करते हैं, किलोमीटर या मीटर? क्लियर? यस, वेरी गुड। स्पीड हम लोग किसमें काउंट करेंगे? स्पीड एक तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान में रख लीजिए। यस, पर आवर, ये स्लैश को पर कहते हैं। एंड टाइम किसमें काउंट करेंगे हम लोग? आवर और आइदर मिनट, मिनट भी हो सकता है, और सेकेंड्स। यस, तो अब यहाँ पर एक चीज आपको स्टूडेंट याद रखनी है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपका स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए, और आपका टाइम भी आवर में होना चाहिए। सारे यूनिट सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं रहेंगे तो हमें उसे कन्वर्ट करना है, हमें उसे सेम करना पड़ेगा। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो आपका स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही चाहिए, और ये भी आपका किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। क्लियर दिस एवरीवन? ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपका सपोज आपका एक एक्स है, ये आपका स्पीड के बारे, अगर आपका स्पीड है ये, आपका स्पीड स्टूडेंट्स एक्स किलोमीटर पर आवर में है, और उसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। या आपका स्पीड एक्स मीटर पर सेकेंड में है और आपको उसे कन्वर्ट वाइस वर्सा किलोमीटर पर आवर में। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझ लीजिए। अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में स्टूडेंट्स है और सारे यूनिट मीटर में, तो आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जब किलोमीटर पर आवर का आप जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 5/18। रिमेंबर दिस। अगर आपको रिवर्स पूछा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5। राइट डाउन दिस।
ओके, अब नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स कि ये 5/18 आया कहां से, प्लीज पे अटेंशन दैट। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर और उसका मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्टूडेंट, हु विल टेल मी? यस मुनाल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। क्लियर एवरीवन दिस? तो मैंने ये दो जीरो कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या स्टूडेंट्स? 10/36, which can be written as what? Divide by 2, so 2 5 are 10, 2 18 are, so 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर का अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? 5/18। इज दिस क्लियर एवरीवन, दिस कॉन्सेप्ट? ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लिख लिया? चलो ग्रेट। ओके नाउ आई विल जस्ट शो यू। चलो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, इज दिस स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिखता होगा। जस्ट अ मोमेंट। यस। Okay, now maybe it is, yeah, now it is visible. Okay, try करो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। So what is students first question? See, please read carefully.
a train of 100 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है स्टूडेंट्स 100 मीटर, is running at the speed of what 30 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 30 किलोमीटर पर आवर. एंड द टाइम इन सेकेंड्स when it passes a man standing near the railway line. तो हमें फाइंड करना है टाइम. व्हाट इज टाइम फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, अब मेरे पास डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है और आपको सेकेंड्स में निकालना है. तो डिस्टेंस तो मैंने लिख लिया 100 मीटर, लेकिन स्पीड क्या है स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर पर आवर है. तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में होगा तो आपका स्पीड भी किसमें होना चाहिए मीटर में. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा किलोमीटर पर आवर का, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय y 5/18. यस और नो? So what is going to become 6 5 are 6 6 3 are. So answer is going to be what 25/3. अब ये 25/3 नीचे लिखूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा. 25 4 जा. सो टाइम कितना होगा स्टूडेंट 12 सेकेंड्स. राइट डाउन दिस. होप दिस क्लियर एवरीवन. Try second question. Okay, let's pay attention students what we have now. See, the length of the train and that of a platform are equal. Students, what questions we have? The length of the train and that of a platform are equal. Means I can write like this, length of the train which is equal to length of the platform. Yes or no? Yes, Priyanka got 750. Okay, we'll check Priyanka. If with speed of 90 kilometer per hour, then speed of the train is what? 90 kilometer per hour. The train crosses the platform in 1 minute. Train crosses the platform in 1 minute. So time मेरे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 minute. The length of the train हमें निकालना है. Now pay attention students, what information we have? We have three information. One, the length of the train and the length of the platform both are equal. So I'll consider this is what, और ये हमें मीटर में निकालना है. तो मैं इसको पकड़ता हूँ x मीटर. अब ये 90 किलोमीटर पर आवर है. कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट मीटर पर सेकेंड. कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं 90 इंटू व्हाट 5/18 सबको पता है. सो 18 5 5 इंटू 5 ये होगा 25. This will become what 25 meter per second. Clear everyone? Time is in what 1 minute. So as everyone knows, what is 1 minute stand for 60 seconds. तो अब देखो सारे यूनिट स्टूडेंट्स मीटर में और सेकंड में आ गए. तो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन. ओके, ओनली जस्ट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है.
हमें डिस्टेंस निकालना है. The formula is what? Speed into time, as everyone knows. But now here we have two distances. One is what? Length of the train and length of the platform. So आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो कि अगर जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे उन्हें हमेशा हमें ऐड करना है. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा. सो व्हाट स्पीड वी हैव? 25. And what time we have? 60, which is going to be what? 1500. Is this clear, everyone? So length of the train and length of the platform को अगर हमने x पकड़ा है, देखो तो दो, ये x plus x कितना हो जाएगा? 2x. So 2x which is equal to 1500. So what is x value going to be? 1500 divided by 2, which is equal to 750. 750 ये किसमें होगा? मीटर में. Write down this. Okay, do it. करो fast student, ये लिखो. Hope this clear, everyone. Now try question number 3. Okay, now students, see question number 3 is what? Okay, see, a train passes two bridges of lengths 800 meter and 400 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. See, एक ट्रेन दो ब्रिजेस को पास कर रही है. So length of the bridge 1 is what? 800 meter, and length of the bridge 2 is what? 400 meter. जिसका लेंथ बड़ा है ऑब्वियसली उसे ज्यादा समय जाएगा, 100 सेकेंड्स. ये T1 100 सेकेंड में पास कर रही है और ये T2 कितना है? 60 सेकेंड में. क्लियर एवरीवन? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉट गिवन हियर? हु विल टेल मी? सी, यहां पर स्टूडेंट्स क्या नहीं दिया है? यहां पर नहीं दिया है वो स्पीड. सो इट मीन्स व्हाट? जब एक ट्रेन चल रही है, पास कर रही है, डेफिनेटली दैट ट्रेन विल हैव अ स्पीड. जब वो स्पीड मेंशन नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कांस्टेंट स्पीड. मतलब एक ही स्पीड पे वो ये वाले ब्रिज को एंड ये वाले ब्रिज को दोनों को क्रॉस कर रही है. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, great. So now, okay, now the length of the train
अब देखो, तो मैंने क्या किया, स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड मैंने पकड़ लिया। ये स्पीड मेरा है जो 100 मीटर को, व्हाट इज 100 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और हमें लेंथ ऑफ द ब्रिज, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन भी निकालना है। तो मैंने सपोज मैंने पकड़ लिया लेंथ ऑफ द ट्रेन को, मैंने अगर एक्स पकड़ लिया, एक्स मीटर। स्टूडेंट्स क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज 1 डिवाइड बाय कितने समय में क्रॉस कर रहे हैं, 100 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, बिकॉज लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों ब्रिज के लिए सेम है, और लेंथ ऑफ द ब्रिज 2 डिवाइड बाय 60 हो गया। होप दिस क्लियर। नाउ ये 23 जा, ये 25 जा हो गया। व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, एक्स मैंने पकड़ा है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 800, विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, जो यहां पर है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन एक्स है, व्हाट इज लेंथ ऑफ द ब्रिज टू, 400, और उसे मल्टीप्लाई बाय 5 करो। होप दिस क्लियर। सो 3x which is equal to 2400, 5x which is equal to 2000. So 5x minus 3x would be 2x, और ये होगा 400. So what is x is equal to 200 मीटर. Write down this. Clear everyone? So यहाँ पर स्टूडेंट देखो, एक ट्रेन दोनों ब्रिज को क्रॉस कर रही है, दोनों का टाइम दिया, बट व्हाट इज नॉट गिवन, द स्पीड इज नॉट गिवन. सो इट मींस व्हाट, एक यूनिफॉर्म स्पीड में वो दोनों को क्रॉस कर रही है. सो व्हाइल क्रॉसिंग 800 मीटर ब्रिज, द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज इक्वल रहेगा कब, जब वो 400 मीटर को भी क्रॉस करेगी. क्लियर दिस एवरीवन? यस, लिख लिया आप लोगों ने ये? यस, मुनाल, इज दिस क्लियर? मुनाल, यस, ओके. Okay, do it. Question number 4, student. A 120-meter long train is running at a speed of 90 km per hour. The length of the train is 120 and running at a speed of 90. It will cross a railway platform 230 meter in long. In मतलब वो कितने समय में वो ट्रेन वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, वो हमें फाइंड करना है. Now again see, here we have a length of the train as well as length of the platform. So when you write total distance, it has to be what, added, like 120 plus 230 होगा. Okay. चलो, let's see what is going to become. See, a 120-meter long train. So length of the train is what? 120 meter. Running at a speed of what? 90. So speed of the train कितना दिया है? 90 किलोमीटर पर आवर. It will cross a railway platform. So length of the platform कितना दिया है? 230 मीटर.
ये मीटर है स्टूडेंट, दिस इज मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि कितने समय में इट विल क्रॉस, मतलब हमें टाइम निकालना है। व्हाट इज टाइम फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस? Length of the train plus length of the platform, divide what is speed? 90. So as everyone knows, if other units are in meter, so we have to convert this kilometer per hour into meter per second. तो पता है आपको कितना होगा? 25 multiply by 5 upon 18, which is going to be 18 5 5 into 5 going to be 25 meter per second. Write down यहाँ पर 25. What is length of the train? 120 plus length of the 230, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? ये 350 25 होगा। सो कितना होगा? 25 वन 25, 25 4 होगा 14 सेकेंड्स। राइट डाउन दिस। सो व्हाट इज यहाँ पर आईएमपी क्या है? फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि यूनिट सारे सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। देन इफ देयर आर टू डिस्टेंसेस तो विदाउट फेल उन्हें ऐड करना है। यस, रिमेंबर दिस। ओके, ट्राई दिस स्टूडेंट। Two cars start at same time from one point and move along two roads at the right angle to each other। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट है, यहां से एक ट्रेन ऐसा जाएगी और एक ट्रेन ऐसा जाएगी। क्लियर एवरीवन? टू कार, सॉरी, टू कार स्टार्टेड, ये पॉइंट सेम पॉइंट है यहां से from one point and move along two roads at the right angle to each other. Their speeds were 36 km per hour and 48 km per hour. Okay. And after 15 seconds, the distance between them will be what? ये हमें फाइंड करना है। Two cars start at the same time from one point, move along two roads at the right angle triangle. Okay. अब ये देखो यहां पर जाके ये डिस्टेंस बन जाएगा, so this becomes right angle triangle. Clear everyone this? उनका स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर। Okay, Priyanka got the answer. Very good. What about others?
Okay, chalo. Okay, we'll check whether Priyanka got right answer or not. See, two cars, Priyanka said 250. Okay, we'll check it out. Two cars start at the same time from one point and move along roads. राइट एंगल्स में बोला है, राइट, देयर स्पीड. सो हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 15 सेकंड्स हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ स्पीड, वी हैव अ टाइम, राइट, बिकॉज आफ्टर 15 सेकंड्स बोला है. तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार. लेट अस सी क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड वी हैव अ 36 इनटू क्या करोगे 5/18, राइट, इनटू टाइम है 15 सेकेंड्स. सो 18 टू जा 5 टू जा 10, तो ये हो गया 150 मीटर. यस. सेकेंड वर्ड डिस्टेंस बाय सेकेंड कार, अगेन स्पीड इनटू टाइम. व्हाट इज स्पीड? उनका 48 दिया है, इनटू 5/18, बिकॉज मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इनटू 15 होगा. सो दिस विल कम्स टू व्हाट 200 मीटर. तो ये स्टूडेंट्स ये 150 हो गया, ये वाला, और ये हो गया 200. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब हमें निकालना है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, मतलब एक यहां पर पहुंच रहा है, एक यहां पर पहुंच रहा है, और ये हमें डिस्टेंस निकालना है. सो टेल मी विच थ्योरम विल अप्लाई हियर. कौन मुझे बताएगा? हाउ डू वी फाइंड दैट डिस्टेंस? सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी पॉइंट है. तो मुझे क्या फाइंड करना है? एसी निकालना है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? द नेम ऑफ द थ्योरम इज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम. वेरी गुड, वेरी गुड. सो AC square which is equal to AB square plus BC square. So what is AB square? We have AB is what? 150 square. What is BC? We have 200 square. 150 का square everyone knows which is going to be 225, 20 plus 200 का 4 और उसका 20. Right everyone? But now this is what? Nothing but AC square. But I want to find AC. So this will be in square root. तभी तो मुझे AC मिलेगा. तो स्क्वायर रूट कैसे आया? while taking square root of both sides. So AC का स्क्वायर निकल जाएगा, AC will remain, and this whole एक number will come in square root. So 225 plus 40,000 would be what? 6 lakhs 625. So what is AC is equal to 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25, और 2 0 का 1 0. आंसर इज व्हाट? 250 मीटर. So Priyanka got the right answer. Write down this. Very good, Priyanka. Okay. 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 Try this, student. Question number 3. A train overtakes two persons who are walking in the same direction, in which the train is going at the rate of 2 km/h and 4, and passes them completely 9 and 10 seconds with the length of the train. अब यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट क्या होता है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर. सी, एक होता है स्टूडेंट्स रिलेटिव स्पीड. व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एक होगा सेम डायरेक्शन, और एक होगा अपोजिट डायरेक्शन. हाँ, सी, सेम डायरेक्शन, अपोजिट.
See, this is only applicable to speed, student. What is same direction? Suppose यहां पर एक, यहां से एक आदमी टुवर्ड्स यहां पर चल रहा है विद स्पीड ऑफ x kph, और सेम पॉइंट से दूसरा आदमी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज कॉल्ड y kph, हैविंग स्पीड व्हाट y kph. So this is called what? Both the person moving in what? Same direction. So this is nothing but what? When they are moving in same direction, so their relative speed going to be x minus y kph. When two moving things moving in the same direction, so their relative speed going to be what? Subtract. यहां पर एक स्पीड है मूविंग इन x किलोमीटर पर आवर, और यहां पर एक है मूविंग इन y किलोमीटर पर आवर. क्लियर एवरीवन दिस? तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा स्टूडेंट्स? x plus y kph. Hope this clear, because they are moving in what? Opposite. So write down this. Okay, clear this. Okay, try to solve this question. This is again good question. Two cars start at the same time from A and B, which is 120 kilometer apart. If the two cars travel towards each other, they meet after 1 hour, and if they travel in same direction, then they meet A. Then A meet B after 6 hours. Then what is the speed of the car starting from point A? Okay, student, now see, pay attention. What is here? Two cars. See, yes, concept को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. Two cars start at the same time from A and B, which is 120 किलोमीटर apart. मतलब सपोज यहां से एक ट्रेन, अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर जाते हैं, मतलब अपोजिट, यहां से एक ट्रेन, दो कार और यहां से एक कार, ऐसा देयर आर टू कार्स.
इफ द स्पीड ऑफ दिस कार इफ आई कंसिडर x किलोमीटर पर आवर, तो इसका मैं पकड़ लूंगा y किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी वाला, बिटवीन ए एंड बी, कितना दिया है स्टूडेंट्स? वी हैव अ 120 किलोमीटर अपार्ट। क्लियर एवरीवन दिस? if the two, okay, they meet after 1 hour, okay, now see, understand the concept। पहला ये वाला लाइन समझ दीजिए, ये वाला लाइन सबसे बढ़िया लाइन है। देखो, if the two cars travel towards each other, they meet after 1 hour, okay, यहां पर देख लो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर स्पीड हमने पकड़ लिया एक का एक्स, टाइम है 1, तो वो ये एक्स ही हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? एक्स। दूसरे का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? स्पीड हमने y पकड़ा है, तो y इंटू वो भी 1 आवर लग रहा है, तो ये भी 1, तो ये हो गया y। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, तो ये होगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 120 जो हमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस। क्लियर एवरीवन दिस? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज नेक्स्ट? इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट लाइन, देखो बहुत बढ़िया लाइन है ये भी। क्या कह रहे हैं? इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब दोनों एक जगह से ही निकल रहे बी की तरफ, then A meet after B 6 hours. It means what? The difference between them is 6 hours. Clear everyone? तो आप डायरेक्टली क्या देखो, तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x। व्हाट इज टाइम? 6, तो टोटल हो जाएगा 6x। सेम दूसरा डिस्टेंस कितना होगा? y इनटू टाइम, 6 आवर्स ही बोला, तो ये हो जाएगा 6y। क्लियर दिस एवरीवन? सो व्हाट इज गोइंग टू बिकम 6x माइनस 6y विच इज इक्वल टू 120, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट मैंने डिफरेंस माइनस क्यों लिया है? बिकॉज एज एवरीवन नोज दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सो व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो हम उनका डिस्टेंस क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट में रहेगा तो प्लस होगा। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हो? एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो आप इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y, ये होगा 720, ये है 6x माइनस 6y विच इज इक्वल टू 120। तो ये 6x, ये y तो कैंसिल होगा, प्लस माइनस है। हाँ, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइंस तो चेंज होगा ना। अगर दोनों को ऐड करते हो, देखो क्या होता है, 12x और ये कितना होगा? 840। व्हाट इज एक्स वैल्यू स्टूडेंट्स? 70 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन दिस, क्योंकि आपको एक्स ही निकालना था। तो ये कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझ लीजिए कि ये 6x हमने कहां से लाया, ये ओनली x कहां से आया, बिकॉज वहां पर 1 था, तो 1 इंटू आप x करोगे तो आपको x ही मिलेगा। क्लियर दिस एवरीवन? ओके ग्रेट। ओके नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। A train overtakes two person who are walking in the, again walking in the same direction, in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely 9 and 10 seconds. So the हमें find करना है the length of the train. A train overtakes two person who are walking in the same direction.
एनीवन ट्राई दिस? काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी. A train overtakes two persons who are walking in the same direction in which the train is going. जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो आदमी चल रहा है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4. तो ये 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर किसका रेट है? वो दो आदमी का. बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी ट्रेन 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नहीं चलेगी स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर दिस. एंड पासेस देम कंप्लीटली 9 और 10 सेकेंड भी दिया हुआ है और हमें दिया है द लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर मैंने पकड़ लिया x मीटर और लेंथ ऑफ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन वो भी हमें पता नहीं है, जिसको हमने पकड़ लिया y मीटर पर सेकेंड. क्लियर दिस एवरीवन? यस. अब हम लोग स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन निकाल, बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड में है तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन क्या होगा? 2 into 5/18 विच इज 10/5/9 हो जाएगा. क्लियर? और स्पीड ऑफ द पर्सन 2 क्या होगा? 4 into 5/18 सो विच इज 10/9 हो जाएगा. यस. यहां तक सबको क्लियर हो गया? नाउ वो कह रहे हैं कि पासेस देम कंप्लीटली 9 सेकेंड. 9 सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम इज व्हाट? 9. डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? x. और स्पीड कितना होगा? y माइनस 5/9 बिकॉज सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. y माइनस 5/9. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गया एक के लिए. तो आप ये सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू, ये पूरा टर्म वहां पर जाएगा, ये जाएगा आपको 9y माइनस 5 विच इज इक्वल टू x मिलेगा. यस. सेकंड सेकंड इक्वेशन देखो क्या है स्टूडेंट. सेकंड क्या बनेगा? टाइम कितना दिया? 10. तो 10 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या रहेगा? वो x ही रहेगा. और स्पीड क्या रहेगा? y माइनस, बिकॉज ट्रेन का स्पीड बढ़ा रहेगा तो पहले y होगा माइनस ये वाला 10/9. क्लियर दिस एवरीवन? ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये, इफ यू सॉल्व दिस विल गेट 90y माइनस 100 विच इज इक्वल टू 9x. इसको भी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो ये इक्वेशन को लेके तो ये भी 90y होगा माइनस 50 होगा विच इज इक्वल टू 10x हो जाएगा. इसको मैं 1 पकड़ता हूं, इसको मैं 2 पकड़ता हूं. अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, दो में से अगर आपने एक को माइनस किया तो 90y ओके. सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू. तो 90 पहले ये लेता 1, 90y माइनस 50 माइनस 90y और माइनस बाहर रहेगा तो अंदर का ये प्लस हो जाएगा प्लस 100 विच इज इक्वल टू 10x में से 9x गया. होप दिस क्लियर एवरीवन? सो 90 स्टूडेंट्स क्या होगा? कैंसल. 100 में से 50 गया 50 और 10x में से x गया तो x. तो x का वैल्यू कितना आया? 50. राइट डाउन दिस.
ओके, अब आपको पता ये कैसे आया, ये इक्वेशन समझाना कैसे आया स्टूडेंट। ओके, इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन। सी, ये पूरे टर्म को यहाँ ले जाओ, तो ये अगर टर्म टर्म यहाँ पर जाता हो, यहाँ पर दिखा रहता हो, या आई विल जस्ट शो यू हियर, देखो वो अगर टर्म वहां पर गया तो 10 इंटू कितना होगा, y माइनस 10/9 विच इज इक्वल टू x हो गया। क्लियर दिस एवरीवन। देन इस ये ओपन कर दो तो ये होगा 10y माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू x होगा। अब मुझे नीचे का 9 निकालना होगा, तो मुझे सारे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 9 से करूंगा और इसको भी 9 से करूंगा। होप सबको पता है, तो ये होगा 90y, ये 9 और ये 9 गया, 10 इंटू 10 माइनस 100, और ये 9x हो गया। तो देखो ये मिला। क्लियर एवरीवन, समझा आपको ये कहां से आया ये वाला। ओके, लिख लिया आप लोगों ने वो। चलो, ओके, डू इट क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन करो फास्ट। अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विथ स्पीड 70 किलोमीटर का स्पीड है, विथ इट स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर्स बाय 10 किलोमीटर। मतलब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर एवरी 2 आवर किलोमीटर उसका स्पीड 10 किलोमीटर से इंक्रीज हो रहा है। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल इट कवर 345 किलोमीटर। करो फर्स्ट स्टूडेंट। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 70 किलोमीटर का स्पीड चल रहा है इनिशियली, हर 2 घंटे के बाद वो 10-10 किलोमीटर बढ़ेगा। लेट्स सी, ट्राई कौन करता है, देखो सबसे पहले इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी कवर 345, मतलब कितने आवर्स में वो 345 कवर कर पाएगा।
Okay, Priyanka saying B. Okay, Priyanka, let's check. Okay, very good, Priyanka. Let me check first. Chalo, we'll check out C. Okay, now students first understand initial speed of the motor कितना है? 70 है. So यहाँ पर पहले ये देख लीजिए. इनिशियल स्पीड कितना है? जस्ट अ मोमेंट. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी. सी, इनिशियल स्पीड कितना था? 70 किलोमीटर. अब 2 घंटे के बाद बढ़ेगा ना, तो पहले तो हमें 2 घंटे के बाद तो पहले ये देखना है कि फर्स्ट 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है. राइट. तो ये आपको एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझने के लिए लिख रहा हूं. डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 आवर्स. क्या फॉर्मूला है? स्पीड इनटू टाइम. कितना स्पीड था स्टूडेंट्स? 10 किलो 2 आवर्स. ओके, स्पीड तो 70 किलोमीटर पर आवर है. तो 70 इंटू टाइम कितना है? 2 घंटा. तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 140 किलोमीटर. यहां तक सब इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 आवर्स, ये चेक करो. आप स्टूडेंट देखो, स्पीड इनटू टाइम. अब मुझे बताइए क्या स्पीड होगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हर 2 घंटे में 2 किलोमीटर से बढ़ रहा है. तो यहाँ पर 70 की जगह कितना होगा? 80 इंटू 2 हो जाएगा. तो ये हो गया 160 किलोमीटर. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो अब हमें पता चल गया कि ये 2 घंटा और ये दो, टोटल कितना हो गया? 4 घंटा. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, 140 प्लस 160 स्टूडेंट्स कितना हो गया? 300 किलोमीटर. अब मुझे कितना कवर करना है? ओनली 45. तो वो उसका टाइम कितना जाएगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या डिस्टेंस है? 45. और यहां पर बोलो मुझे क्या स्पीड होगा? पहला स्पीड में 70 पकड़ा है, बाद में 80 पकड़ा, तो नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए क्या होगा? और 10 से बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी हाफ आवर. सो टोटल टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स? 4. सॉरी, टोटल टाइम लगा है. वेरी गुड प्रियंका. प्रियंका का आंसर राइट है. 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस ये हाफ आवर, which is going to be 4.5 hours. It's clear this everyone? Yes. Okay, try this. This is again very good question. Two stations A and B are 827 kilometer apart from each other. One train starts from station A at 5 a.m. and travel towards station B at 62. Another train starts from station B at 7 a.m. and travel towards station A at 59. At what time will they meet? काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी. और ये वाला क्वेश्चन ऑफिसर लेवल में पूछा गया है बहुत बार.
See, two stations A and B are 827 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. देखो ये स्टूडेंट्स दो स्टेशन है विच आर 827 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 5 AM. यहां से एक ट्रेन निकल रही है 5 बजे जो जा रही है टुवर्ड्स बी और उसका स्पीड है एट 62. इसका स्पीड दिया स्टूडेंट 62 kph. अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, यहां से यहां तरफ जा रही है एट 7 AM. ओके, प्रियंका गॉट आंसर, वेरी गुड, 7 AM. और उसका स्पीड है 59 kph. एट व्हाट टाइम विल दे मीट? सी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है देखो. अब मैं आपको पूछता हूं, मुझे आप उसका आंसर दीजिए. एक एक ट्रेन स्टूडेंट्स 5 बजे निकल रही है और उन्होंने पूछा कितने बजे मिलेंगे दोनों, और दूसरी ट्रेन 7 बजे निकल रही है. तो मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस कितने घंटे का है स्टूडेंट? कितने आवर्स का डिस्टेंस है दोनों में निकलने में? ओके, ईश्वरी सेड यस 2 आवर्स का है. इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, जब तक ये ट्रेन यहां से निकलेगी तब तक ये ट्रेन ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया रहेगा, यस और नो, 2 घंटे में. तो हम समझते हैं कि ये ट्रेन ने देखो इतना वाला डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर लिया, यस. और यहां पर ये ट्रेन यहां पर आ गई. अब जैसे ही 7 बज गए तो ये ट्रेन यहां से निकली, तो ये ट्रेन जो यहां पर पहुंची वो यहां से, और ये जो ट्रेन यहां से निकलेगी उनके लिए इतना ही डिस्टेंस कवर करना है. ये ध्यान में रख लीजिए. क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी उनको इतना, ये देखो ये वाला डिस्टेंस ही अब दोनों को कवर करना है. तो मेरे पास 827 है. तो मुझे पहला ये पता होना चाहिए कि जो 5 बजे जो ट्रेन निकली है उसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो राइट डाउन दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए. इसको मैं ए पकड़ता हूं जो ए की निकली, इन व्हाट, इन 2 आवर्स. तो स्पीड कितना है 62 इंटू टाइम 2, तो ये हो गया 124. तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स? ये वाला 124 आया. तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? 827 में से अगर अपने 124 घला दिया, 703 किलोमीटर आया. क्लियर एवरीवन? अब ये किसको कवर करना है स्टूडेंट्स? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर करना है. मतलब ये जो डिस्टेंस देखो ये वाला, ये कितना आया 703. अब ये वाला डिस्टेंस इन दोनों ट्रेन को कवर करना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, एट व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, सॉरी. सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कितना है 703 अपॉन स्पीड. अब देखो यहां पर दोनों कैसे चल रहे हैं स्टूडेंट? दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. एक यहां से जा रहा है, एक यहां से. तो मैंने क्या कहा था? व्हेन टू ट्रेन्स, व्हेन टू स्पीड्स, व्हेन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट, उनका स्पीड क्या होगा? ऐड होगा. तो ये कितना हो जाएगा? 121. क्लियर दिस एवरीवन? यस. तो ये आपका हो गया 121 किलोमीटर पर आवर टाइम. ओके, तो ये आपका हो गया किलोमीटर में, और आपका ये हो गया किलोमीटर पर आवर में. तो किलोमीटर किलो बचेगा, और बचेगा फाइनली टाइम का यूनिट आवर बचेगा. तो व्हेन यू डिवाइड दिस, अब देखो अगर आप 703 जो आपका आंसर आया हुआ है स्टूडेंट्स, 703 डिवाइड 121 करोगे, सो यू विल गेट 5.8. ये आवर्स हो गया. ओके, लेकिन आप इसको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको क्या फाइंड करने को बोला? एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ये निकालना है. ओके, और दूसरा ये जो 0.8 आवर्स है उसको भी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 आवर्स प्लस ये जो 0.8 है
उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करो, तो ये हो जाएगा 48 सेकेंड्स, 48 मिनट्स हो जाएगा। 8 6 48। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 5 hours 48 minutes हो गया। 60 से क्यों मैंने कन्वर्ट किया? क्योंकि स्टूडेंट्स 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, ये ध्यान में रख लीजिए। तो हमें पूछा है कि कितने बजे मिलेंगे, कितना समय लगेगा नहीं पूछा, कितने बजे मिलेंगे। तो मुझे बताइए सबसे लेट ट्रेन कौन सी निकली? ये वाले 7 बजे, तभी तो ये लोग मिल पाएंगे। तो 7 बज के 7 प्लस उसमें इतना टाइम ऐड कर दो, 5 hours 48 minutes अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 12 बज के 48 मिनट। ऑप्शन में देखो, फोर्थ सी में है। यस, राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर दिस एवरीवन? ओके, ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है। ए पर्सन लिव्स अ प्लेस ए टू प्लेस बी 6 बजे एंड रीचेस प्लेस बी एट 10 am. अनदर पर्सन लिव्स 7:30 एंड रीचेस, तो दे विल मीट ईच एट, कब मिलेंगे वो आपको फाइंड करना है। खाली ऊपर आपको डिस्टेंस नहीं दिया, बस उतना ही फर्क है, बाकी आपको सब कुछ दिया हुआ है। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
Okay, anyone who can try? See students, now what we can do here, a person leaves a place A, see please pay attention. See, a person leaves place A to place B, ये निकल रहा है स्टूडेंट 6 बजे एंड रीचेस प्लेस यहाँ पर 10 बजे पहुंच रहा है. कितने का ये हो गया 4 आवर्स का. एंड अनदर पर्सन लीव्स बी 7:30 बजे और यहाँ पर पहुंच रहा है 11 बजे यहां से. ओके ओके, नाउ स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन फर्स्ट. और ये डिस्टेंस हमने पकड़ लिया है x किलोमीटर. ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस, ये टाइम 4 आवर्स का और ये हो गया 3.5 आवर्स. यस और नो स्टूडेंट? दोनों में डिफरेंस देखो, ये 7:30 बजे निकल के 11 बजे पहुंच रहा है, मतलब उसे ऊपर वाले को लग रहा है 3.5 घंटा और नीचे वाले को लग रहा है 4 घंटा. तो हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ द पर्सन ए जो ए की तरफ से निकल रहा है. क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना डिस्टेंस है x और टाइम कितना लग रहा है उसको 4 घंटा. ये हो गया किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द पर्सन बी क्या होगा स्टूडेंट? सेम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम x बाई 3 2 जा 6 + 1 7/2 होगा विच इज इक्वल टू 2x बाई 7. ये हो गया किलोमीटर पर आवर. अब इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है. दोनों अपोजिट में चल रहे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. x/4 plus 2x/7 which is equal to 7x plus 8x upon 28 which is going to be 15x/28. क्लियर? हाँ, यहां तक तो हमने कर लिया. मतलब डिस्टेंस हमारा x है, रिलेटिव डिस्टेंस हमने x पकड़ा हुआ है. यहाँ पर देखो मैंने दिया ए बी इज इक्वल टू, हमने x पकड़ा है x किलोमीटर. स्पीड ऑफ द ए मिला, स्पीड ऑफ द दोनों का मुझे स्पीड मिल गया. अब पहले हमें ये फाइंड करना है कि जो देखो ये वाला 6 बजे निकला है और ये वाला 7:30 बजे निकला है. तो सपोज ये वाला यहां पर जाके अगर 7:30 बजते हैं तो ऑब्वियसली इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है. यस और नो? तो पहले हमें ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन इन 1.5 आवर. सेम अर्लियर क्वेश्चन ही है. डिस्टेंस कवर्ड बाय ए लिख देता हूं इन 3/2 आवर्स. 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब 1.5 आवर्स. ये हमेशा ध्यान में रख लो. स्पीड कितना है ए का? x/4. ये देखो ये वाला इनटू टाइम कितना है 3/2. ये हो जाएगा 3x/8. क्लियर दिस? सो व्हाट इज रिमेनिंग डिस्टेंस स्टूडेंट्स? आपको पता है x में से माइनस करो 3x/8. सो विच इज गोइंग टू बी 8x minus 3x upon 8 which is going to be 5x/8. ये आपका हो गया किलोमीटर. क्लियर दिस एवरीवन? ओके, तो टाइम कैसे निकालोगे? 5x/8 दैट इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड जो अर्लियर क्वेश्चन में किया था 15x/28. तो 5x अपॉन 8 इंटू 28 अपॉन 15x. तो 5 3 जा और यहाँ पर 4 2 जा 4 7 जा. तो आंसर होगा 7/6. अब ये 7/6 स्टूडेंट्स हो गया आवर्स में. इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 7/6 इंटू 60 करो. 6 10 जा तो ये हो गया 70 मिनट. अब हमें क्या पूछा कि कितने बजे, टाइम कितने बजे मिलेंगे वो लोग? सेकेंड ट्रेन कितने बजे निकल रही है स्टूडेंट्स? वो निकल रही है 7:30 बजे. तो 7:30 में आप लोग 70 मिनट ऐड करो. तो 70 मिनट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 घंटा एंड 10 मिनट्स. यस और नो? तो ये 7 और ये कितना हो गया 8 और ये 30 और 10 40 मिनट. 8:40. क्लियर एवरीवन? तो ये एक बार आपको समझ में आ गया स्टूडेंट तो आपको लिखना कुछ नहीं है, खाली फिगर लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ.
ओके, चलो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ इशू नहीं है, पहले इसको लिख लीजिए। देखो हमने डिस्टेंस क्या पकड़ा यहाँ पर, x किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द ये क्या होगा, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या पकड़ा, एक टाइम कितना लग रहा है, देखो ये 6 बजे जा रहा है और 10 बजे पहुंच रहा है, मतलब उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 घंटा लगा। तो x/4 किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड ऑफ द बी कितना होगा, सेम, डिस्टेंस तो वही है, टाइम कितना लग रहा है, 3.5। तो 3.5 को मैंने कैसे लिखा, 3.5 को मैंने ऐसे लिखा, 3 2 6 + 1 7/2। 7/2 मतलब 3.5 विच इज इक्वल टू 3.5 हो गया। अब इन दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 15x/28, दोनों को ऐड करो, x/4 + 2x/7। क्लियर एवरीवन? यस। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 3/2 आवर्स। 3/2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1.5 घंटे में। वाई 1.5 घंटा, बिकॉज ए से जो ट्रेन निकल रही है वो 6 बजे निकल रही है, और जो बी से निकल रही है वो 7:30 बजे निकल रही है। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1.5 घंटे का है। क्योंकि जब ये वाला ट्रेन 7:30 बजे निकलेगी, तो तब तक ये ट्रेन ने यहां तक तो डिस्टेंस कवर किया रहेगा 1.5 घंटे में। तो पहले मुझे वो निकालना है। तो मैंने कैसे निकाला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है वो ट्रेन का, x/4 इंटू टाइम 3/2, दोनों का मिला के हो गया 3x/8। अब ये हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर। लेकिन हमें क्या करना है, रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज इतना ही दोनों को मिलने वाला है कवर करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, x में से 3x/8 को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिला 15x/8। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 5x/8 जो बचा हुआ है, और कवर कौन करने वाले, ये दोनों ट्रेन। तो मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना आया, 15x/28। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। अब इसको अपने हमने सॉल्व कैसे किया वो देखो, 5x/8 डिवाइड 15x/28। आप उसको ऐसा लिख सकते हो, 5x/8 इंटू ये जो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे रहेगा, 15x। तो 5 3 जा 4 2 जा 4 7 जा, तो 7/6 हो गया। अब 7/6 स्टूडेंट्स ये है आवर्स में, आपको उसे हमेशा मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 6 1 जा 6 10 जा, तो 7 × 10 कितना हो गया, 70 मिनट। तो 70 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 आवर एंड 10 मिनट्स। यस और नो, 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, 60 मिनट्स। बस, तो 7:30 बजे जो ट्रेन सबसे लेट निकलती उसमें ये टाइम को ऐड कर देना है। क्लियर प्रियंका देश? यस यस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। कल भी हम लोग ये टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम को हम लोग कल, बोट एंड स्ट्रीम 1 मार्क के लिए 3 फॉर्मूले पे आता है, बहुत सिंपल है। दैट विल बी फिनिश बाय टुमारो। सो ये चैप्टर अपना कल खत्म हो जाएगा। क्लियर? अभी हमारे थ्योरी वाले टॉपिक्स जो बैठे, ओके प्रियंका, इस वीक का शेड्यूल अभी आपका एक ही है, क्योंकि आपके सारे मैथ्स के ही टॉपिक, बाकी आपका सारा सिलेबस हो गया है। तो मैं आपको आपको ये देखो, यहाँ पर देखो शेड्यूल, आप समझ लीजिए क्या होगा। आपकी तरफ से कुछ 2 इंग्लिश के टॉपिक्स पेंडिंग है, दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीक। अभी आप लोगों का देखो, हमने आपका रीजनिंग कवर हो गया है, आपका मैथ्स, करंट अफेयर्स हो गया है, आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। ओके, मैगजीन्स आपको देने हैं, वो मैं आपको दे दूंगा ग्रुप पे, ये शायद आपको मैंने दिए भी हैं। ओके, आपका अभी आपका इंग्लिश के भी 2 टॉपिक आपके खाली पेंडिंग है, दैट विल बी कवर्ड, जो इतने आईएमपी नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज पेंडिंग, मैथ्स पे आप लोगों का थ्योरी वाले टॉपिक, जो मैडम के थ्योरी वाले थे मैडम ने कवर कर ली है। अब यहाँ पर जो मेरे टॉपिक, जिसमें से हमने कल जो कवर किया था वो हमने कवर किया, एस आई एंड सी आई, ये हमने कवर कर लिया। ओके, आज हम लोग टीएसडी कर रहे हैं एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये अपना कल कवर हो जाएगा। मतलब कल तो ट्यूसडे है, तो कल यही चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको हमें पूरा एक दिन जाएगा। फिर रहेगा प्रोबेबिलिटी, उसको हमें एक ट्यूसडे, ये हो गया वेनेसडे, और ये हो गया थर्सडे। एंड देन फ्राइडे स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे टाइम एंड वर्क।
और टाइम एंड वर्क को आई विल रिक्वायर 3 सेशंस नेक्स्ट वीक. क्लियर प्रियंका? यस यस, थैंक यू प्रियंका. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं. इट्स अगेन वंडरफुल सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट एवरी